آپ چھوڑ دیں. آپ نہ میں اپنی سنت کا ہم ثواب کمانے کے لیے کر رہے ہیں. آپ اپنا وہ والی مینو پڑھا دو, وہ بھی میں لے جانا سال میں. نہیں کچھ نہیں ہوتا. آ جائیں ادھر, ایسے ادھر ہے نا, ایسے ہے. آپ آئیے پکڑائیں. جی جی وہ بات سنو, وہ ختم ہو گیا. نہیں اور ہے, فروٹر ہے, وہ نہیں ہے. وہ میں نے پوچھا, میں نے ان سے کہا 3 پیٹی لے, وہ لے, وہ نہیں ملا. یار شاہ جی کنو ہے نہیں, پتا کر جو ہے جس کا کان کا پردہ خلیل نے مار کے, یہ ان کے بچے, یہ کھڑا ہے, یہ دونوں ان کے بچے, یہ عمران خان پہ قربان. یہ سب بچے عمران خان, یہ وہ ورسید ہے جس کا کان کا پردہ پڑ گیا تھا. عمران خان کے لیے جان دیا. کیوں بنا رہا بہت تکلیف ہوتا ہے. زندہ باد علیمہ کا زندہ باد, زندہ باد. کون بچائے گا پاکستان, کون بچائے گا پاکستان, تیرے جانسار. میڈم نادیہ, میڈم نادیہ کر دیا ہے. تو جو جن لوگوں کو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے مذہب کے پیشوائے, جو حافظ ہیں, جو قرآن پاک کو اور حدیث کو پڑھ کے ہمیں سچا راستہ دکھائیں گے, 4 دن کی ان کو جیل نہیں ملی, تو وہ ان شرائط پہ باہر آ گئے کہ آپ نے ہمارا بیانیہ جا کے بتانا ہے, دیسی گھی کے تڑکے بتانے ہیں کہ وہ لگتے ہیں. اگر آپ قرآن اور حدیث کے اتنے سچے اور ان کے امین ہوتے تو آپ باہر آ کے دیسی تڑکوں کا ذکر نہ کرتے. آپ یہ کہتے کہ محنت قید تنہائی گزاری ہے. میں دیکھ کے آیا ہوں کہ اتنے دن کتنے مشکل تھے, اور وہ جو 2 سال سے قید تنہائی گزار رہا ہے, جس کے ساتھ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, وہ کتنا مضبوط انسان ہوگا کہ وہ میرے اور آپ کے لیے جو کام ہم علماء کو کرنا چاہیے تھا اس نے اس کا علم بلند کیا ہے. لیکن نہیں, چونکہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا ہر کوئی بکتا ہے, شاہ بھی بکتا ہے, ادیب بھی بکتا ہے, فقیر بھی بکتا ہے, امیر بھی بکتا ہے, بادشاہ بھی بکتا ہے, مولوی بھی بکتا ہے. لیکن یاد رکھیں ہماری اسلامیات ٹھیک ہو گئی ہے. اب ہم جس کے پیچھے چلیں گے اسی کے پیچھے چلیں گے جو حق اور سچ کی بات کرے گا, جو اللہ اور اس کے رسول کی, آئین اور قانون کی, اور اس بدماشی, غنڈہ گردی, ظلم اور تشدد کے خلاف جو بولے گا, ہم انشاءاللہ اس کے خلاف چلیں گے. آپ کو نظر آ رہی ہیں جو سڑک پہ بیٹھی ہیں اور اپنے بھائی سے ملاقات کا انتظار کر رہے ہیں, اور دیکھیں جی, میں اس کے اوپر یہ کہنا چاہوں گا کہ ظلم اور تشدد کا یہ جو دور ہے جو ہمارے اوپر یہ مسلط کر دیا گیا ہے, اس کو اگر ابھی ہم سمجھیں, نیوٹرل ہو کے سمجھیں, تو کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی منشا کے مطابق آئین اور قانون کی کوئی چیز فراہم نہیں کریں گے. نہ ہم آپ کو جو آپ کا آئینی حق کے ملاقاتوں کا نہ وہ دیں گے, نہ خان صاحب سے آپ کو ملنے دیں گے, نہ آپ کو آپ کے بیسکس رائٹس دیں گے. اس کے مقابلے میں بڑی دلچسپ بات ہے, کیا دکھایا جا رہا ہے جی, کیوں نہیں دیں گے؟ کوئی کردار پیش کریں, عوام کے لیے کچھ پیش کریں, آپ کا کوئی کردار ہو. نہیں, کردار سے نہیں, بدماشی سے, غنڈہ گردی سے, فرعونیت سے, طاقت کے نشے میں امریکہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پیچھے امریکہ کھڑا ہے. تو ہم اس ظلم و تشدد سے آپ کو روک کے دکھائیں گے. یہ میسج دیا جا رہا ہے, لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا, خاک صحرا پہ جمے یا کفے قاتل پہ جمے, تیغ بیداد پہ یا لاشائے بسمل پہ جمے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. ظلم کی بات ہی کیا, ظلم کی اوقات ہی کیا, ظلم پھر ظلم ہے آغاز سے انجام تلک. خون پھر خون ہے, 100 شکلیں بدل سکتا ہے, ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے, ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے, ایسے نعرے بن چکا ہے یہ خون. یہ اب گزرتے گزرتے جس خون کو تم نے
मक्तल में दबाना चाहा, आज गलियों और बाजार में आ निकला है। कहीं नारा, कहीं शोला, कहीं पत्थर बनकर। खून चलता है तो दबता नहीं आइनों से, खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से। इंशाअल्लाह ये अब आपसे रुकने वाला नहीं है। आपने खून बहा कर देख लिया है, आपने जुल्म तशद्दुद करके देख लिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं, तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में अकलों की खरीदारी की, ईंट से ईंट बजा दी गई, खुददारी की, और खौफ को रख लिया खिदमत पे तमादारी की। और आज मुझसे मेरी जिनसे गिरा मांगते हो, हल्फ ज़हन वफादारी ये जा मांगते हो, जाओ ये चीज़ किसी मद्दासरा से मांगो। मुझसे मांगोगे तो खंजर से अदू बोलेगा, गर्दनें काट भी डालोगे तो लहू बोलेगा। आइन, कानून, इंसाफ इमरान खान बोलेगा। और याद रखो, एक वक्त आएगा तुम्हें इंसाफ भी देना पड़ेगा। तुम्हें पाकिस्तान से ये जुल्म तशद्दुद से जो तुम काबिज हो, ये कब्जा भी छोड़ना पड़ेगा। और ये अवाम अपना हक लेकर रहेगी, नहीं लेके दे रहेगी तो फिर बाकी अक़वाम की तरह जुल्म तशद्दुद की चक्की में पिस के मर जाएगी। लेकिन अवाम ने फैसला कर लिया है कि हम वेनेज़ुएला के सदर की तरह इस तरह नहीं करेंगे, तुम्हें अपना खान नहीं देंगे। हम अपनी इस जुर्रत के साथ, कुव्वत बाजू के साथ इंशाअल्लाह अब की बार निकलेंगे, अपना खान भी लेके आएंगे। लेकिन खान भी अब ऐसा खान लेके आएंगे जो आइन और कानून की ताकत में होगा। और तुम्हें इन चौकों और चौराहों के ऊपर जो तुमने जुल्म किया, तशद्दुद किया, आइन तोड़ा, तुम्हें इंशाअल्लाह लटकाएगा। आइन और कानून की बालादस्ती होगी, इस गरीब आवाम की बालादस्ती होगी, इंसाफ की बालादस्ती होगी। और हम भी सर फख्र से बुलंद करके ये कह सकेंगे कि हम पाकिस्तान को बनाने वाले और पाकिस्तान को सही मानों में आज़ादी दिलाने वाले लीडर के पीछे चलकर तुमसे ये कब्जा छुड़ाया था और इंशाअल्लाह कब्जा छुड़ा कर दम लेंगे। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो कराची जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? सूबे के अंदर किस किस्म के मसाइल हैं और आपके चीफ एग्जीक्यूटिव लीड कर रहे हैं एहतजाजी मुजाहिरों को कराची जाकर, वो भी अपने सूबे से कई 100 किलोमीटर की दूरी पे वो इंजॉय कर रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? आपने ये लफ्ज़ कहा जी कि इंजॉय कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये इंजॉयमेंट नहीं है। इस वक्त सोहेल अफरीदी को इमरान खान साहब ने जो जिम्मेदारी दी है, सोहेल अफरीदी को खान साहब ने जिम्मेदारी है, स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी दी है। वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होने के साथ साथ उसके ऊपर एक और जिम्मेदारी भी है कि वो इस मुल्क के अंदर इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के लिए भी जदोजहद करे। वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होकर वो अपने सूबे में तमाम जमातों को इकट्ठा करके ये अगर कहता है कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा, तो आप आए रोज आके धमकी देते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन होगा। अगर वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होकर ड्रोन हमले कहता है नहीं होंगे, आप कहते हैं नहीं ड्रोन हमले होंगे। वो कहता है कि यहाँ पर इस सूबे का पहले हक है इसकी मादनियात पे, आप कहते हैं नहीं लसानियत की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं ये नेशनलिस्ट है। अगर वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होकर आपको अपनी ताकत दिखा रहा है, आप उसकी वो ताकत नहीं मान रहे, तो उसने ये फैसला किया है कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव भी उस वक्त एम्पावर होगा जब पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के और अवाम के हुक्मरान बैठेंगे, जो अमेरिका के आगे सजदा रेज होकर जो यहाँ पे अमेरिका के हुक्म को मुसल्लत करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ वो जदोजहद कर रहा है, जो उसका एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक पार्टी का एक मेंबर होने के नाते उसको इखलाकी फ़र्ज़ दिया गया है, वो उस अपने फ़र्ज़ को निभा रहा है। और इंशाअल्लाह वो इस फ़र्ज़ में कामयाब होगा, क्योंकि वो एक नजरियाती कारकुन है। उसने इमरान खान की गोद में आंख खोली है और उसने इमरान खान की आगोश में परवरिश पाई है और उसके नजरियात, उसकी सोच बड़ी क्लियर है। वो किसी भी आपके नर्म गदाज 5 स्टार के इन महल्लात में बैठ के फैसले करने वाला चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। वो यहाँ हमारे साथ बैठ के फैसले करता है और वो ये फैसला कर चुका है कि हम आईनी कानूनी अपने जितने भी इख्तियारात हैं वो ताकतवरों से छीन कर इस अवाम को इंशाल्लाह देंगे। अता तारड़ साहब, अता तारड़ जो है उनकी जानिब से काफ़ी संगीन इल्ज़ाम लगाए गए हैं। अता तारड़ कहते हैं कि आपके चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम हैं, वो सहूलतकारी करते हैं उन मंशियात फरोशों की, उसे कैसे देखते हैं आप? ये अता तारड़ साहब ने भी हालिया बयान दिया है ARY में। देखें, अता तारड़ उसको जो पर्चा दिया जाएगा वो पड़ेगा, उसकी औकात ही कुछ नहीं है, उसकी हैसियत ही कुछ नहीं है। अता तारड़ की क्या बात कर रहे हैं? हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कुछ नहीं समझते जो डिग्गी के अंदर बैठ के जाते हैं, हम उनको बिल्कुल वैल्यू ही नहीं देते। हम बड़े क्लियर हैं, हमें पता है हमारे ऊपर किसने तसल्लुत कायम रखा है। लेकिन अगर वो आज एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर मंशियात का इल्ज़ाम लगाते हैं, वो आज तक उनको इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ, उनको इस चीज़ का अभी तक एहसास नहीं हुआ कि राना सनाउल्लाह के ऊपर जो मंशियात के इल्ज़ामात लगे, अदालतों से प्रूव भी हुए, जेल काट के आया। आज अगर वो इसी रविश को बरकरार रखते हुए दोबारा से ये काम करेंगे तो फिर कल को हमें दोबारा से कैसे कहेंगे कि आप लोगों ने हमें जेलों के अंदर डाला। दूसरी बात, जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर इस तरह की बकवासात करते हैं तो बदले में हमारा मीना खान अफरीदी आपसे इशारों में सवाल करता है, तो फिर आपकी अखलाकियात बड़ी याद आ जाती है। और कौन सी अखलाकियात आपको याद आती है? आपके किरदार हमेशा आप बिकते रहे, आप बाजारों में मंडियों की तरह बिके। आपने हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग, करप्शन, बदउनवानी, ज़मीर नाम की आपके अंदर कोई चीज़ भी नहीं है, उसके बावजूद आपको गैरत याद आ
जाती है तो वो उस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो सिकंदर आजम के सामने नहीं झुके, जिन्होंने हमेशा अपनी गैरत को मुकद्दम रखा, जो अमेरिका के सामने नहीं झुके, जो बरतानिया के सामने नहीं झुके, आप उनकी गैरत को बार बार ललकार कर ये जो आप एक नेशनलिस्ट कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, आप पख्तूनों को, हमारे भाइयों को, मैं बहैसियत पंजाबी शर्मिंदा हूँ इनके इन बयानात से कि आप हमारे पख्तूनों को ये गुस्सा दिला रहे हैं कि आप चरस और मंशियात का काम करते हैं, और फिर जब अमन व अमान का मसला बनता है तो फिर बंदूकों वाले इनके पीछे खड़े होते हैं और आ जाते हैं। तो इन पुरानी टैक्टिस से हमें समझ है, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको गैरत करनी चाहिए कि इनको जो मसलक मिल चुका है, अगर इनके रक्षे के पीछे BMW लिख दिया गया है, अगर फॉर्म 47 के जरिए इनको मुसल्लत कर दिया गया है, कम से कम अपना नहीं इस कुर्सी का ये एहसास करें, शर्म करें, गैरत करें कि मेहमानों में बैठकर किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। और बाजारी ज़ुबान के जवाब में जब हमारे लोग साबित शुदा इल्ज़ामात के ऊपर बात करते हैं, इन्हें अखलाकियात याद आ जाती है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि अपने इन ज़ुबानों को लगाम दें और अता ताड़र जैसे टर करने वाले लोगों को काबू में रखें, वरना हमारे पास भी ज़ुबान है, हम भी अहले ज़ुबान है, जब हम अर्ज़ करेंगे तो फिर शिकायत हो। सर आपको ये पैगाम दे रहे, आप अल्लाह का कुरान लेके आए या जो मर्जी लेके आए, आप हमें चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन याद रखें जब से ये कायनात बनी है, यहाँ पे जब रात होती है तो सूरज जो यहाँ पे उसकी रोशनी होती है, वो उसकी जिद में अल्लाह पाक ने इसीलिए बनाई है कि मैं अगर अंधेरा बनाने पे कादिर हूँ तो मैं रोशनी भी लाने पे कादिर हूँ। जिस तरह ये जुल्मत के अंधेरे आप लेके आए अल्लाह के हुक्म से, इंशाअल्लाह इसी तरह उजाले भी सुबह के यहीं से नुमादार होंगे, और ये लोग उजालों के मुसाफिर आपकी इस तवील रात को इंशाअल्लाह खत्म करके दम देंगे।